तेज दिल की बीमारियों और मोटापे से बचाव में मददगार साबित होते हैं। First group of small, rounded, whole grains, often considered ancient grains. They are a staple food in many parts of Asia and Africa, particularly in regions with dry climates, and are known for their drought resistance and high nutritional value. As we are gathered here to discuss an important topic, that are millets, which not play a significant role in our health, but also open a golden opportunity of our life. Millets are a group of crops that have been a part of our life for thousands of years ago. Millets often do as a course, cereals as a treasure, true of ऐसे मौजू पर बात करना चाहती हूँ जो हमारी सेहत, हमारी जमीन और हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है। मिलेट यानी बाजरा, जी हाँ, वही कदीम अनाज जिन्हें हमने भुला दिया, लेकिन अब वक्त है कि हम इनकी तरफ लौट आए और खुद को, अपने खानदान को और अपनी कौम को सेहतमंद बनाएं। making them an ideal crop for sustainable farming. They help low glycemic index, preventing diabetes, preventing obesity and cardiovascular disease. Antioxidants protect our body from free radicals. Just weight control, diabetes friendly. With a low glycemic index, millet release sugar slowly into the bloodstream, making them an excellent food choice for people with diabetes. Heart health. Millet helps lower cholesterol and support cardiovascular health by reducing blood pressure and improving circulation. Improves digestion. The insoluble fiber in millets help prevent Scientific terminology, millets have been defined as small seed grains that belong to the botanical family Poaceae, known as ancient green. These millets are one of the oldest cultivation crop present on earth that are widely across Asia and Africa. So, dear audience, millets are small seed grains that have been cultivated for thousands of years. They are considered one of the oldest cultivation crop known to human. की भी कम जरूरत पड़ती है और ये सख्त मौसमी हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी कोशिश जमीनी वसाइल पर कम दबाव डालती है, जिससे जमीन की जरखेज़ी कायम दायम रहती है और पानी की भी बचत होती है। अगर बाजरा जात हम रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी that is very important, and I hope you use the millets. That quote is, let food with high medicine, let food with high medicine, and medicine with high food. That means खाना तुम्हारी दवा हो, खाना तुम्हारी दवा हो, और दवा तुम्हारा खाना हो. That's it. Now I. कभी खाया बाजरा आप में से किसी ने? हमें तो कभी मौका नहीं मिला बाजरा खाने का। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, बल्कि आखिरी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो महविश गुलजार। से बढ़कर प्यारे बच्चों, आज हमारा ये जो इवेंट था 7 तारीख को होना था, हालात की वजह से ये पोस्टपोन हुआ था। आज जब हमें चीफ एजुकेशन ऑफिस से डायरेक्शन मिल गई थी परसों कि 23 को करना है, तो यहाँ इस इवेंट पे आने से पहले मैं मुबारक दूंगा हमारे उन 14 बच्चों को जिन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की है बोर्ड एग्जाम में, और हमने कोशिश करके उनको फैसिलिटेट किया है। 12वीं वाले 12 बच्चों और 12th वाले 10th वाले 2 बच्चों के लिए मेरी तरफ से आप सारे जोरदार ताली बजाएंगे। So let's start. In this slide, I will discuss about key points of millet. Millet and its types, health benefits of millet, sustainable planet and millet, case study of millet, national and international initiatives, action call and conclusion. Next. In this slide, we will discuss about what is millet and its types. Millet एक ऐसी क्रॉप है जो कि छोटी दाने वाली ग्रास को कहा जाता है। मिलेट्स ज्यादातर एशियन कंट्रीज में ग्रो किया जाता है। अगर हम मिलेट्स की बात करें हिस्ट्री की इसकी, तो कहा यह जाता है कि जो मिलेट्स है 4500 BC से पहले भी उगाया जाता था। वेद पुराण में भी इनका बयान किया गया है। ग्रीन हाउस क्या होता है?
अच्छा क्या बनाया है? हाँ? अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा आपका नाम क्या है? ठीक है तारिक, बताइए। अच्छा नहीं, आपने कहा ये डाइट पैरामीटर वो मैंने देखने का कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, फैट्स ये मिलके होते हैं बैलेंस डाइट। फिर उसके साथ आगे इफेक्ट्स क्या बेटा, ये क्या बनाया हुआ है? नेचुरल फार्मिंग, वेरी नाइस जी, बताइए सर। नेचर फार्मिंग हम काश्तकारी की हम केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड। वेरी गुड, लेकिन ये मल्चिंग आपने लिखा हुआ है, ये आप जरा समझाओ मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंट कर रहे हैं हाई सेकेंडरी स्कूल साजिया को, मुबारक आपको, बहुत बहुत बच्चों को भी बेस्ट विशेष। भूपिंदर सर आ जाए, भूपिंदर सर आ जाओ, भूपिंदर सर। थर्ड पोजीशन रिजवान शेख। आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हायर स्टडीज़ की डायरेक्शन पर बॉयज़ हाई स्कूल मंडी में राजकीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और साइंस सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मंडी जोन और साथरा जोन जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जोन हैं के सभी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स के बच्चों ने शमूलियत की। इस सेमिनार का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए, और ख़ास तौर से जो सेमिनार था मिलेट्स फॉर हेल्थ एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, इसमें बच्चों के दरमियान ये शऊर पैदा किया गया कि किस तरीके से वो प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें, और साथ साथ नए मॉडल्स जो कि सस्टेनेबिलिटी की ही थीम से रिलेटेड थे बच्चों ने तैयार किए। इसमें मॉडल्स में जो क्लस्टर से सिलेक्ट हुए उसमें बॉयज़ हाई स्कूल मंडी और हाई स्कूल साथरा सिलेक्ट हुआ, जबकि सेमिनार में हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया की एक बच्ची नईमा और जो है हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी का एक लड़का गजाली जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद अगर वो वहाँ से सिलेक्ट होते हैं तो यूटी लेवल पर वो पार्टिसिपेट करेंगे।